السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک حج کا کرنا ہے۔ میرے دوستو، ساری چیزیں عبادات جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتے ہیں، اور اللہ نے جو حکم دیا عبادات کو بجا لانے کا، یاد رکھیے اس میں کوئی نہ کوئی ریزن ہے اور بہت بڑی اس میں کوئی مصلحت اور حکمت ہے۔ اب دیکھیے ذرا، اللہ نے کہا نماز قائم کرو، تو نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز جو ہے کہ انسان کو فحش کاموں سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک غریبوں کا درد معلوم چلتا ہے کہ ایک غریب انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیسے اپنے آپ کو جھیلتا ہوگا اور کیسے سارے چیزوں کو برداشت کر کے دن بھر پورے بھوکے رہ کر کے سارے کاموں کو اپنے آل و اولاد کے لیے وہ انجام دیتا ہے۔ اور میرے دوستو، آپ روزہ کی فضیلت دیکھیے اللہ نے کیا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ جو ہے کہ ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ جب وہ انسان اس کو ادا کرے گا تو مال کی محبت اور دنیا کی محبت اس کے دلوں سے ختم ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا بھی مسلمانوں کو حکم دیا۔ میرے دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا کتنا بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سارے انبیاء کرام وہاں پہ گئے اور الحمدللہ اس کام کو بجا کر کے لائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے ارکان سکھلائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جنت سے آئے اور آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں بتائیں کہ حج کیسے کرنا ہے اور کب کس جگہ پہ رکنا ہے۔ تو میرے دوستو، اب ہم اور آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم لوگ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں جس میں کیا فائدے ہیں، ہمیں کیا ملے گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اللہ کا جو حکم آ گیا اس پہ اپنے کان بند کر کے، آنکھ بند کر کے ہمیں اس میں لگ جانا ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہمیں بجا لانا ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، یاد رکھیے اللہ کے حکموں کو پالن کرنا ہے۔ یہودی لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی کام کریں گے تو پہلے وہ اپنا کلیکشن کریں گے، اس میں کیا ملے گا، ہمیں کتنا بینیفٹ ہے، ہمیں کیا فائدہ ہے، تب ہم کریں گے۔ اگزامپل کے طور پہ آپ کسی یہودی سے اگر 10 روپے مانگیں گے کسی ضرورت کے تحت، تو پوچھے گا یہ بتاؤ مجھے کتنا ملے گا اور مجھے کیا دو گے اس 10 کے بدلے میں۔ تو میرے دوستو، لیکن مسلمانوں کو اللہ نے ایسے نہیں، مسلمانوں کو اللہ نے کہا نہیں، جو حکم ہو گیا اس کو پالن کرنا ہے، اس پہ سر تسلیم خم کر دینا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ معزز سامعین کرام، لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو کیسے کرے؟ آپ ایک اور چیز سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس میں جاتا ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ گولی کھائیے سر میں کا درد ٹھیک ہو جائے گا، یہ گولی کھائیں گے آپ کا پیٹ اور ہاضمہ ٹھیک رہے گا، لیکن ڈاکٹر کے پاس بہت بھیڑ بھاڑ تھی، وہ بتا نہ سکا یہ کون سی دوا کس چیز کے لیے ہے، یہ کون سی دوا کس بیماری کے لیے ہے، لیکن اس نے صرف اتنا آپ کو کہا کہ آپ لے جا کر کے اسے کھائیے۔ کیا آپ آئیں گے تو سوچیں گے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اور یہ ہم کیوں کھائیں، اس سے کیا فائدہ ہے؟ نہیں، بلکہ ڈاکٹر نے جو ہمیں کہہ دیا، بتا دیا ہمیں دوا کھانا ہے، اب کیا ہے اس کے چکر میں نہیں پڑنا۔ تو میرے دوستو، جب اللہ نے جب حکم دے دیا یہ حج کرنا ہے، تو اب اس میں یہ کیوں سوچنا کہ اتنے پیسے لگ جائیں گے، اتنے دور کیسے جائیں گے، پھر ہمارے 4 لاکھ روپے رہ جائیں گے۔ اگزامپل کے طور پہ سمجھیے، اگر ابھی کے وقت میں 4 لاکھ روپے لگ رہے حج کرنے جانے کے لیے، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور بھٹکاتا ہے کہ اے انسان ذرا تو سوچ کہ تو
हज करने जाएगा तो तेरा 4 लाख रुपए खर्च होंगे, फिर इतनी मुशक्क़तों के बाद जाएगा, फिर वहाँ पहुँच करके तुझे क्या मिलेगा? अरे तू यहाँ भी तो ना तू इबादत कर सकता है, यहाँ भी गरीबों का मदद करके वो सवाब हासिल कर सकता है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, हज करना है। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ है। अगर अल्लाह ने आपको वसअत दिया है, दौलत है, वहाँ पे आप जा करके और आराम से आ सकते हैं, तो मेरे दोस्तों आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि हज करने के लिए जाएं। और हज में याद रखिए, अल्लाह से इश्क और मोहब्बत जो होती है, वो मोहब्बत झलकती है, वो मोहब्बत दिखाई देता कि अल्लाह से हम कैसे मोहब्बत कर रहे हैं। अब देखिए लोग वहाँ जाते हैं, लोग जा कर के वहाँ पे खाने काबा का तवाफ़ करते हैं, चक्कर लगाते हैं, 4 चक्कर जो लगाते हैं वो काफ़ी बदन को मचलते हुए चलते हैं, दिखाते हैं कि देखो मेरे अंदर अभी कितनी एनर्जी है, हम क्या से क्या कर सकते हैं, कैसे चल सकते हैं। और फिर उसके बाद कुछ चक्कर जो है कि आहिस्ता लगाते हैं। मेरे दोस्तों वहाँ पे जब हम जाते हैं तो याद रखिए ईमान ताज़ा हो जाता है, हमें लगता है कि वाक़ईतन हमने अल्लाह के घर में आया है। आप वहाँ जब जाएं और देखें मेरे रसूल की वो सरज़मीन, जिस जगह पे मेरे रसूल वहाँ पे खड़े थे, उस सरज़मीन को देखेंगे आप अराफात के मैदान में, जिस मैदान में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिखाया था हज के सारे अरकान। आप वहाँ जाएंगे तो मीना के मैदान में देखेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कैसे कुर्बान करने के लिए आपने लिटाया था। वहाँ जाने के बाद जब लोग रमई जमार करने पड़ते हैं, जब कंकड़ी मारने जाते हैं, तो सीन याद आ जाता है कि कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकड़ मारा था। मेरे दोस्तों ये एक इश्क है जो अल्लाह की मोहब्बत में लोग जाते हैं, पूरे घर बार छोड़कर, पूरी दुनिया छोड़कर, पैसों की परवाह नहीं करते, बस जाते हैं। ये कौन जाता है मेरे दोस्तों? वही जा सकता है जो आशिक होगा, जो मोहब्बत करने वाला होगा, जिसके दिल में तड़प होगी। मैं एक बात बताऊं, आप लैला और मजनू का वाक़या सुने होंगे, जिसे इमरुल कैस भी कहा जाता है मजनू को। तो मेरे दोस्तों वो दरो दीवार को चूमता था और एक शेर कहता है, एक शेर वो कहता है कि मैं इस दरो दीवार को चूमता हूँ और मैं लैला के गलियों में भटकता हूँ और मैं सारी चीज़ों को देखता हूँ। लोगों मैं बेवकूफ़ नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि मैं इन दरो दीवार को इसलिए चूमता हूँ और इस गली के चक्कर में इसलिए लगाता हूँ कि मेरा जो मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ और मेरी जो लैला है वो लैला इस गली में रहती है, इसलिए मैं इस दरो दीवार को चूमता हूँ। मेरे दोस्तों जो हाजी होते हैं, जब वो हज करने जाते हैं, हुज्जाज कराम होते हैं, तो दरो दीवार को जब वहाँ पे हजरे अस्वद को जब वो बोसा देने जाते हैं, चूमते हैं, तो मेरे दोस्तों पत्थर को नहीं बल्कि उस जो खाने काबा का जो दरो दीवार है उसकी चक्कर नहीं, बल्कि वो तो अल्लाह की मोहब्बत में चक्कर लगाते हैं, बल्कि जन्नत से जो पत्थर लाए गए वो तो अल्लाह के मोहब्बत में चूमे जाते हैं। मेरे दोस्तों अल्लाह ने कहा ये मेरा घर है, खाने काबा मेरा घर है, इसलिए मुसलमान उसकी चक्कर लगाते हैं। मुसलमान तो अल्लाह के लिए चक्कर लगाता है, अल्लाह के इश्क में पागल हो जाता है, दीवानों की तरफ फिरता है और वहाँ जा कर के और चाहता है कि मैं कैसे अपने रब को राज़ी करूं और कैसे मैं अपने रसूल को राज़ी कर पाऊं। मेरे दोस्तों उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप लोग सुने होंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनको उमर सानी भी कही जाती है, आप बहुत बड़े बादशाह थे, बड़े इंसाफवर बादशाह थे और बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार और काफ़ी आजिज़ी और इनकसारी उनके अंदर भरी हुई थी। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब हज करने के लिए गए तो किताबों में लिखा है कि आप संगरेजे पे खड़े थे, पत्थरों पे खड़े हैं, सर के बाल में गर्द गुबार पड़े हुए हैं, कपड़े मैले कुचैले हो चुके हैं, और वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वह कहते हैं
दुआ मांगते हैं, या रब्बी अंता अंता, ऐ मेरे रब तू है, व अना अना, और मैं हूँ, अना लाउवादु बिज़्ज़म्बी, मैं तो गुनाहों का रसिया हूँ, मैं तो गुनाहों का आदी हूँ, व अंत लाउवादु बिल मग़फ़िरती, और तू तो मेरे गुनाहों के माफ़ करने का आदी है, तू तो मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इग़फ़िर ली, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है जिसको अल्लाह से इश्क हो गया हो, अल्लाह से मोहब्बत हो गए हो। मेरे दोस्तों, 4 लाख रुपए खर्च करना आसान नहीं है, इतनी गर्मियों में जाना आसान नहीं है, सारी मुशक्क़तों को झेलना आसान नहीं है, बल्कि इसको तो वही झेल सकता है जिसको सच्ची अल्लाह से मोहब्बत हो, जिसको दुनिया की मोहब्बत ना हो, पैसे को कुछ न समझता हो। वो समझता है हो कि मुझे तो अपने अल्लाह से मिलने जाना है, मुझे तो अल्लाह के उस घर में जाना है जिस घर में अल्लाह ने मुझे आने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हज कर ले, जो शख्स हज और उम्रा कर ले, उस शख्स के लिए जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है। मेरे दोस्तों, अगर कोई आदमी उम्रा करता है तो एक उम्रा से लेकर दूसरे उम्रा तक सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, और जब आदमी हज कर लेता है तो उस आदमी के लिए हर हाल में जन्नत वाजिब हो जाती है। मेरे दोस्तों, हज की फजीलत वो है, और हम उस जगह पे क्यों ना जाए जिस जगह पे मेरा अल्लाह ने हमें बुलाया हो। अल्लाह से बड़ा कौन हो सकता है? आप देखिए, अगर कोई इंसान किसी से मिलने जाता है, अगर कोई एमएलए है, अगर कोई एमपी है, इंसान मिलने जाता है, अगर आज नहीं मुलाकात हुई तो फिर कल जाता है, कल मुलाकात ना हुई परसों जाता है, लेकिन कोई परेशानी नहीं। और जो अहकमुल हाकिमीन से मिलने के लिए जाए, जो रब्बुल आलमीन से मिलने जाए, जो परवरदिगार और पूरे दुनिया का पालनहार हो, उससे मिलना हो, दिल में कितनी खुशी होगी मेरे दोस्तों। उस रब से मिलना है। जो शख्स हज करने के लिए गया, हज कर लेने के बाद मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिसने हज कर लिया, सच्चे दिल से हज कर लिया, वो हज करने के बाद ऐसा हो गया जैसे वो अपने माँ के पेट से आज ही पैदा होकर के आ रहा। गोया पिछले सारे गुनाह उसके माफ कर दिए गए। तो मेरे दोस्तों, हम हज करने क्यों न जाए? आप सब इरादा करें, हम भी इरादा करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको हज पे बुलाए और अपने मुबारक घर और सबसे बाबरकत और पाकीज़ा जगह के अल्लाह हम सबको ज़ियारत कराए। मेरे दोस्तों, अल्लाह से हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबों को अपने घर पे पहुंचने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबों को दुनिया की मोहब्बत से निकाल करके सिर्फ अल्लाह अपने आप से मोहब्बत करने वाला हम सबको बना दे। दुआ करें, आमीन सुम्मा आमीन।